हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET कॉन्सेप्ट। मैं हूं विष्णु मोहन पाठक, आपका गाइड और मेंटर CUET PG इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है और करेंटली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आज के वीडियो का जो एजेंडा है, इसमें हम लोग दो बेसिक चीज़ें देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप इस सिलेबस को कंसिडर करें। तो this video will be divided into two parts. The first part of the video is what is theory, and in the second part of the video we will try to understand what is structuralism. So in the first component we will try to understand what is theory, how did theory emerge, is there any difficulty in understanding theory, what was there before theory, and some core concepts of theory. आपको लगता होगा कि ये तो डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर अगर आप इससे अवेयर नहीं हैं तो आप फ्यूचर में थ्योरी का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम एक जनरल टू स्पेसिफिक वाला नेचर का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग स्ट्रक्चरलिज्म, विच इज़ वन ऑफ द सेवरल थियरीज दैट वी हैव टू स्टडी एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। उसमें हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और कुछ थियरिस्ट्स को। बट बिफोर दैट, and you already know through the syllabus video that I have also qualified in the first episode of CUET PG English exam, CUET PG linguistics exams. So coming to some details, your paid course and its classes will be beginning from the 25th of August, and the actual price of your course is 4,999. However, the offer price is this, and you can avail an extra 10% discount if you download our app and log in through these methods. You can also contact our team if you want to know further details. Right, coming to our topics, what is theory and understanding structuralism. So what is theory, इसका एक बेसिक सेंस समझते हैं। सबसे पहले theory is the principle and criticism is the act. Most of the times we understand the world in terms of binaries. Binaries क्या होती है, जैसे white and black, day and night, such binaries. Although one of the jobs of theory is to dismantle these binaries, but for the time being we are looking at theory in contrast to criticism. So theory is the principle and criticism is the act. How do we understand it? In the general sense, for example, let's say there is a shop that is located 500 meters away from your home, and you have been buying groceries from that shop from the last 20 to 30 years. Let's say a new shop has recently opened just 50 meters away from your home, but you are not going to buy things from that shop. Why? Because you have a principle in your mind, एक idea, एक तरीके का सिद्धांत, a guiding principle in your mind that you are loyal. So here loyalty is your principle. अब loyal किसके प्रति? Loyal towards the first shopkeeper, right? And how does it translate into action, into act? Basically you walk 500 meters, you take all the trouble to reach up to that old shop instead of opting for convenience, opting for the shop that is just 50 meters away from your home. तो ये हुआ एक जनरल सेंस में। बट हाउ डू वी अंडरस्टैंड थियरी इन लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट? सो इफ यू टेक फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म, feminist theory. So the feminist theory says that there should be an equality of sexes, that men and women should be treated equally. So this is one idea, this is the theory. How do we see it in action? Let's say feminist critics take up one text, वो उसमें देखती हैं कि whether the author has represented women adequately or not, whether the author has ignored women at all, or is there any difference between the portrayals of men and women characters. क्या किसी women character को बेवकूफ़ जैसा दिखाने की कोशिश की गई है? So this act of scrutinizing is criticism, and the original principle कि हम लोग को equality सीख करनी है is the feminist theory, right? So the next question would be, why did theory emerge? किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? If the critical tradition was going all good
And before we proceed further, one thing that I must tell, that I'm assuming that you are familiar to some extent with the concept of literary criticism. You know that there were names like Plato, Aristotle, Philip Sidney, T.S. Eliot, F.R. Lewis, I.A. Richards, William Emerson, and so on. So if you are familiar with them, then only you can understand it. And there is another expectation, and there is another, say, assumption that you will exercise patience in this video, because for understanding theory, patience is one of the most important important items basically that you need to have. So why did theory emerge? So as you know, or probably I will be telling you, that theory emerged in the aftermath of the two world wars. Two world wars, basically the first world war occurred around 1914 to 1918, and the second one 39-45 range. So in the aftermath of these two world wars, there was a lot of scientific progress. So people were making bombs, science people were doing a lot of things. Basically, even the computer was at its initial stages of development. So the question emerged, what are the people in humanities, in arts are doing? वो किस तरीके से contribute कर रहे हैं society को? And science people are doing systematic study. If you understand the definition of science, it says that science is a systematic study of the natural phenomena, of the physical phenomena, where observation, experimentation, and other methods are used. So they were challenging, people in science were challenging that people in humanities do not have a standardized set of things to explain. वो सब कुछ रैंडमली करते हैं, वर्ड्सवर्थ कुछ और बोल रहा है, अरिस्टोटल कुछ और बोल रहा है. तो टू काउंटर इट, टू ऑफर अ रेजिस्टेंस एंड टू ऑफर एन इक्विवेलेंस टू साइंस, व्हाट केम थियरी. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेरी थियरी. आप लोग जानते हैं लिटरेरी क्या है, समथिंग दैट पर्टेन्स टू लिटरेचर. तो लिटरेरी थियरी की डेफिनेशन में इसके एमरजेंस का रीज़न है. लिटरेरी थियरी इज द ऑर्गेनाइज्ड systematized analysis of literary texts, the institution of literature, and reflection on the interpretative strategies applied to these texts. ये मैंने प्रमोद के नायर की बुक से लिया हुआ है. तो यहाँ पॉइंट क्या है कि ये सिस्टमेटाइज्ड है लाइक साइंस, और ये कर क्या रही है, ये इंटरप्रेट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है, सोच रही है जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लिटरेचर में प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर. सो इफ़ यू टॉक एटिमोलॉजिकली, मतलब अगर किसी वर्ड के रूट में जाएं, सो द वर्ड थियरी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थियरिया, एंड रेस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू हाईलाइट इज स्पेक्यूलेशन. थियरी हैज स्पेक्यूलेशन इन इट, एंड स्पेक्यूलेशन डज नॉट मीन मेयरली गेसिंग, कि आप सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा. इट हैज़ मोर टू इट, और हम उस पर बात करेंगे अभी थोड़ी देर में. सो थियरी दस जेस्चर्स एट सेवरल थिंग्स एट वंस, टू स्पेकुलेट एंड टू कंटेम्पलेट. कंटेम्पलेट करना मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटीज. तो कोई एक कह रहा है कि योर थियरी इज क्रिटिकल, तो दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं, योर क्रिटिसिज्म इज थियोरेटिकल. तो तब तक एक लीडर आता है, वो बोलता है कि अरे भाई, अब तुम लोग तो दिन भर बकवास करते रहते हो, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, योर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट्स आर डिफंडेड. सो आई हैव नेम्ड इट द क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटीज. इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस. कमिंग टू व्हाट हैपेंड बिफोर थियरी. अगर कोई चीज़ आई है तो उसके पहले भी जरूर कुछ ना कुछ होगा. तो बिफोर थियरी बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एनरिच किया है, बट they are so divergent. Like Aristotle is talking about something else, Longinus, Philip Sidney, Dryden, Samuel Johnson, and William Wordsworth, Coleridge, Shelley, so many people up to F.R. Lewis, and their traditions are so different. But how to understand them in one single framework? उनके अगर सारे वर्क को हम कंसिडर करें तो उसको हम एक टर्म क्या देंगे, दैट टर्म बिकेम करंट इन द 1970s to denote the whole tradition of literary criticism. It is liberal humanism. So this phrase is made up of two words. One is liberal and the other one is humanism. Liberal basically roughly means something that is not very political, something which is not politically radical, and it is usually evasive, माने भागता है, and is non-committal on political issues. Basically theory, liberal humanism has nothing to do with political issues. What are political issues? Like the representation of women, like the question of white versus black, the question of the poor versus rich.
The literary criticism has concerns with the text. For example, Longinus is saying that there should be sublimity in the text. It has nothing to do with political situation. It has nothing to do with what is happening in the society. So humanism means this. Liberal means this, and humanism. So humanism is simply non-theoretical, non-political, non-feminist, non-Marxist, anything which is not political. And it also implies that the human nature is essentially unchanging. It is fixed. तो जो 2000 साल पहले जैसे लोग थे, they are still the same. तो however we मतलब देखते हैं कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. But for literary criticism, they think that social forces do not act upon humans. So coming to the core principles or tenets of liberal humanism, obviously books enlist at least 10 principles, but I have tried to summarize some of them. तो why do we want to understand these principles at first? क्योंकि अगर हम समझना चाहते हैं कि what did theory challenge, कोई चीज़ आती है तो किसी पुराने चीज़ के अगेंस्ट आ रही है, तो what did theory challenge? Theory challenged these core principles. To understand, the first principle is that the timeless significance of literature. Basically, that good literature is of timeless significance. Shakespeare was being read at his own time and in the 21st century itself. So, as well, I mean, तो basically they are saying कि अगर कोई literature अच्छा है तो हमेशा अच्छा रहेगा, and it is free from the social context, political context, and it will be read and enjoyed by people all across time. Right, and from this point, basically this point leads to the second one, key, and it is very important to understand it, that literary text contains its own meaning, or basically literary text is an entity in itself. The text has meaning inherently, innately in it, right? So it is free from context. Context basically हम जब पढ़ाई कर रहे हैं literature की, तो for people in criticism क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है. कॉन्टेक्स्ट, उसके आसपास वो टेक्स्ट क्यों लिखा गया इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट दैट दे इग्नोर? फर्स्ट वन, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, दैट देयर इज अ सोशल बैकग्राउंड, एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल precondition to any event, any text. For example, they would ignore that Romanticism was influenced by the French Revolution. From the rise and fall of Napoleon Bonaparte, there has been an effect that we can see in literature. The second is literary historical, that there is no influence of any previous author on a particular current author. जैसे they are ignoring that if we read Chaucer, we can see the influence of Boccaccio, his Decameron. If we study Shakespeare, we can see how Shakespeare has derived most of his stories from Holinshed's Chronicles. Similarly, if you read T.S. Eliot's Wasteland, you can see so many references of the past. But criticism people are saying that no, we do not need literary historical context or basically biographical context. कि हमको नहीं मतलब है कि whether the author was jailed or not, how did the author live, whether he was poor or not, whether Nelson Mandela fought for something or not. All we are concerned with is to look at what is given in the text. The next thing is human nature is essentially unchanging, something that we have discussed before, that for them, since there is no context that is affecting humans, their nature will not change. जैसे वो लोग पहले थे वैसे ही वो आज भी हैं. जिन कंडीशंस से वो लोग तब प्रभावित होते थे उन्हीं से आज भी होते हैं. सो बेसिकली दे मीन दैट मोरालिटी इज अनचेंजिंग. दीज आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स विद द लिबरल ह्यूमनिस्ट्स. देन इंडिविजुअलिटी. फॉर देम इंडिविजुअलिटी इज एन यूनिक essence within us, something that is possessed as a unique essence within us, and that the individual is antecedent to or transcends social forces. कि basically अगर मैं 2000 साल पहले जन्म लिया होता तो भी मैं यही टाइप का आदमी रहता, और आज के 2000 साल बाद भी मैं यही आदमी हूँ. आई एम अबव सोशल फोर्सेज. सोसाइटी डज नॉट डिटरमिन माई मोरालिटी. आई एम इंडिविजुअल विद इन माई सेल्फ. मैं ही हूँ मतलब अहम ब्रह्मास्मि सॉर्ट ऑफ. तो द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ऑर्गेनिक फॉर्म सिंसियरिटी. आप लोग जानते हैं, जिनको भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बेसिक्स पता है, कि दे वर स्ट्रेसिंग अपॉन basically how you should adhere to form and you should be sincere towards form and the organic matters. ठीक है. The next important thing is the job of criticism.
तो जॉब ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है? वन, टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट फॉर यू, basically to interpret what has been written in the text, and there is no second meaning for liberal humanists. The second job is to mediate between the reader and the text. ये मैं हूँ रीडर, ये है टेक्स्ट, इसके बीच में वो मीडिएट करता है, बताता है कि देखो तुम इसको ऐसे ही पढ़ो. बट व्हेन यू स्टडी फिनोमेनोलॉजी, इनफैक्ट आप लोग जब MM एडमिशन ले लेंगे तो आपको आपकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा. फिनोमेनोलॉजी इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल थियरीज बाय सम ऑफ द स्कॉलर्स. तो वो कहती है कि रीडर है वो डिसाइड करता है कि टेक्स्ट की मीनिंग क्या होगी. ऑल्दो यू मे फाइंड सम ऑफ दिस आइडियाज एक्सट्रीमली बोरिंग, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, राइट. तो ये इसमें एक और वर्ड है स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन कोई क्या होता है? वहाँ पे थ्योरी में हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. एंड व्हाट वी आर लुकिंग एट एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस. कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं चलेगा. मतलब अगर आप दलित हैं तो ही आप लिखेंगे अबाउट दलित पीपल. इफ़ यू आर अ फीमेल देन ओनली यू कैन राइट अबाउट फीमेल्स. सो फॉर देम प्री कंसीव्ड नोशंस, थिंकिंग अबाउट समवन एल्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ in fact not even acceptable, right? And coming to the next question that students often ask and they are basically confused कि is theory difficult? बड़ा दिक्कत है भाई, सुनने में तो बहुत भारी भारी वर्ड्स लग रहे हैं. So this is a picture that I have taken from Jonathan Culler's book. हम उनके बारे में बात करेंगे when we talk about structuralism. So this is a joke where they are saying that a terrorist is better than a theorist, right? So basically a terrorist only bombs you, but a theorist bombards you with so many ideas and so many concepts that you feel overwhelmed और in fact लगता है कि पागल हो जाएंगे. And this is an AI generated image where एक ऐसा आदमी दिख रहा है जो थोड़ा परेशान हो गया है फूको और डेरिडा के बारे में पढ़ते हुए. आप इनके बारे में भी आगे के कोर्सेज में पढ़ेंगे, आगे के जो थियोरीज हैं. सो नाउ लुकिंग एट these problems specifically, what are the problems that students usually think of? The first one is that they feel that they are mentally incapable of understanding theory. पहली चीज़ ऐसा कुछ नहीं होता है. Secondly, they think, मतलब basically within this point itself, they think that they do not have a philosophical mind to think about the bigger ideas and so on. So this is not so. Second, insufficient training. Some people think that because their school and their colleges have not trained them enough to study theory, they won't be able to grasp it. And the third problem that people think of is that the material itself, the thing that you are going to study, is inherently, innately in itself difficult. Material जो पढ़ने जा रहे हैं वही ख़राब है, वही बहुत कठिन है. तो हम इसके how do we tackle these problems, ये solutions हम देखेंगे. सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा, that we have to exercise patience, like we have to understand the pitch, the surface of the text. तो अभी इंग्लैंड से हमारी एक टेस्ट सीरीज हुई थी, तो उसमें हमने अपने कुछ क्रिकेटर्स जैसे कि SSC जायसवाल, KL राहुल, शुभमन गिल को देखा कि उन्होंने इनिशियली कुछ बॉल्स फेस की. सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द पिच, द सरफेस, हाउ वेदर द बॉल इज स्विंगिंग, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द स्विंग, वेदर द बॉल इज बाउंसिंग और नॉट. ये कैसे समझ में आएगा? व्हेन दे प्ले इट, व्हेन दे फेस इट. तो थोड़ा टाइम लगेगा. यू हैव टू एक्सरसाइज पेशेंस टू अंडरस्टैंड इट. Secondly, that you don't have to doubt the meaningfulness of the material. You don't have to think कि ये material ही फालतू है, ये तो भारी भारी केवल words डाल के रखे, इनका real life में कोई यूज नहीं है. But if you see the feminist theory, you can see so many women working in and around you because this feminist thought was developed. तो उसके यूजेज हैं, ऐसा आपको नहीं समझना है कि सिर्फ जार्गन है. जार्गन वो होता है जो किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में यूज किए जाने वाला स्पेशल वर्ड्स होते हैं. तो इज़ द लैंग्वेज डिफ़िकल्ट और द आइडिया. एक कन्फ्यूजन ये होती है कि हम कभी बार नहीं समझ पाते हैं कि वेदर द लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट और द आइडिया दैट द ऑथर इज़ प्रेजेंटिंग इज़ डिफ़िकल्ट. तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन इट? सी, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज दैट आई ऑल्सो एडमिट है प्रॉब्लम. क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द थियरिस्ट्स दैट वी स्टडी दे ओरिजिनली रोट इन फ्रेंच, एंड फ्रेंच इज अ रोमांस लैंग्वेज. रोमांस मतलब लव वाली लैंग्वेज नहीं. रोमांस मीन्स लैंग्वेजेस दैट एमर्ज्ड. ओफो, मैं पेन को उल्टा पकड़ा हूँ. लैंग्वेज दैट
emerged from the Roman language, like the Italian, Spanish, French, and so many of the Scandinavian languages have Roman origins. That's why they are called Romance languages. तो whether the language is difficult, डिफ़िकल्टी का एक रीजन समझ में आ गया कि रोमांस लैंग्वेजेस से आ रहा है. तो आखिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी ट्रांसलेट दीज वर्क्स इनटू इंग्लिश, दी फ्रेंच वर्ड्स डेवलप अ लैटिनेट सेंस. कि उनमें क्या होता है कि चूंकि वो एंग्लो सेक्शन वर्ड्स जितने ईजी नहीं होते हैं, तो व्हेन वी ट्रांसलेट देम दे डू नॉट रिमेन द सेम, दे बिकम एक्सटेंडेड. इतना बड़ा बड़ा वर्ड्स हो जाता है, उससे फिर आप समझने में आपको दिक्कत होती है. हाउएवर द आइडिया इज, whether the idea is difficult is another thing. Let's say if I ask you, do you not understand that there is a social hierarchy in our world, that there are rich people, middle class people and poor people in our world? Do you not understand that women have been treated unequally? Or do you not understand that the white people have considered the black people and their colonial subjects as stupid? Right? They have ruled us, they have tried to impose their ideas upon us, they have tried even to impose their language upon us, but we have used it as a tool. So that's another case. So if you understand these ideas, you understand the basics of Marxism, feminism, as well as post-colonialism. So the next concept is mastery. So as I referred to Jonathan Culler, I have taken this concept from his book. So Culler says that mastery of theory is impossible because there is so much to read in theory, you can never practically master it. It is endless. And why is it endless? Not because there are endless number of theories, because we can apply these very theories to endless number of works, and since our world has millions and millions of books, we can use them to interpret books, films, architecture, design, film, anything basically, fashion. Anything can be used, anything can be studied using these theories. So the problem of mastery appears here. What we have to study, what we have to understand basically, कि we have to grasp a few concepts, and whenever we read something, we have to apply these concepts to these works, so that you understand the world better, like so that we can reflect on our reading in newer ways. Coming to the next part, I think I have skipped, no. So these are the few core principles, like we discussed the core principles of liberal humanism. Similarly, we will try to decode the core principles of theory. So this is how theory is constituted, this is how theory is made, और इनका ये कुछ feature या nature है. So the first important idea is that theory is interdisciplinary. Interdisciplinary क्या होता है? That the ideas originating in one theory extend to other theories. Basically they go beyond their original discipline. अगर मान लीजिए साइको एनालिसिस में रिप्रेशन की बात है, जो अपने अंदर लोग बोलते हैं बात मैंने दबा के रखी है सालों से भाई साहब, तो जो रिप्रेशन का आइडिया है ये साइको एनालिसिस से आता है हमारे पास. But if we apply it to other contexts, say we use it in the context of China, and we understand how the people who were advocating for democracy were repressed by their governments, the communist government. So obviously this is a concept of psychoanalysis that is being applied to political science. So theory, and this is one of the reasons why people consider theory difficult. They think that because there are concepts from all fields, philosophy, history, art history, film studies, gender studies, anthropology, linguistics, philosophy, so many of these fields, उनको इतना कुछ पता नहीं है तो कैसे समझेंगे भाई? सिंपली आप भी गूगल करेंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको पढ़ लेंगे, बस इतना ही तो है. बट थियरी इज इंटरडिसिप्लिनरी, ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है. इतने सारे फील्ड्स के अंदर आते हैं. ये भी मैंने कुछ AI से बनाया है. तो दिस इज अ डिस्कोर्स विद इफेक्ट्स आउटसाइड एन ओरिजिनल डिसिप्लिन. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, विच इज थियरी इज द क्रिटिक ऑफ कॉमन सेंस. आप लोग जिंदगी में सुने होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो कॉमन सेंस वाली बात है. तुम नहीं जानते क्या, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है. थियरी चैलेंजेस दिस कॉमन सेंस. व्हाट इज कॉमन सेंस? बेसिकली कॉमन सेंस व्यूज अबाउट मीनिंग, राइटिंग, लिटरेचर, एक्सपीरियंस, और इस चीज़ को हम इफेक्ट ऑफ थियरी कहते हैं. अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो, बट कमिंग टू इट, थियरी क्वेश्चंस द नोशन दैट रियलिटी इज व्हाट इज प्रेजेंट एट अ गिवन मोमेंट. राइट?
रियलिटी सिर्फ वो नहीं है जो हम अभी फील कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं। दिस बोर्ड इज, आपको लगता होगा कि रियल है, बट दिस इज नॉट रियल। इट हैज़ बेसिकली फिजिकली है, बट इट हैज़ ऑल्सो सोशियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। क्या है? बिकॉज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज कोरोना आया तो हमें डिजिटल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ने लगी, ऑल्दो इट वॉज नीडेड बिफोर दैट ऑल्सो, पर ये चीज़ हमें वाइड स्प्रेड रूप में कैसे देखने को मिली? बिकॉज ऑफ अ हिस्टोरिकल रीजन ऑफ पैंडमिक। सिमिलरली रियलिटी को सोशल हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, कल्चरल प्रोसेसेस शेप करती हैं, एंड देर इज़ नो फिक्स ट्रूथ। हम इसी वाली बात को, कॉमन सेंस वाली बात को ही एक्सटेंड कर रहे हैं अभी। देर इज़ नो फिक्स ट्रूथ, रियलिटी इज़ अ कंस्ट्रक्शन जो हम बनाते हैं, ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय सोशियो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्रोसेसेस, और उसका एक एग्जाम्पल है जेंडर स्टडीज़। अब हम आ गए वापस से कॉमन सेंस पे। जेंडर स्टडीज नहीं, जेंडर रोल्स, सॉरी। तो जेंडर रोल्स को कॉमन सेंस के रूप में देखा जाता है। दैट पीपल से दैट it is the job of men to go outside to work outside, and it is the job of women to work in the domestic sphere. So this has been taken for long as a common sense, but what does feminist theory do? It challenges this common sense. नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि women are should subject themselves to the domestic sphere itself, right? Then there are other examples like racial categories. तो white people have been saying that black people are evil, black people are bad, they are cannibals and so on. Then so क्या ये रियलिटी है? नहीं। दिस हैज़ बिन क्रिएटेड बाई पीपल हु आर इन पावर, और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं यही नेचुरल है, यही फाइनल है। लाइक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे वेयर द फेयरर सेक्स, सो टू से फेयरर नॉट सेक्स, फेयरर कैटेगरी ऑफ पीपल, गोरे लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, एंड बेसिकली द वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि भाई ये हमें कैसे मिला है? ये हमें मिला है सोशल प्रोसेसेस से। इसकी एक हिस्ट्री है, हाउ पीपल इन पावर हैव ट्राइड टू बेसिकली इम्पोज इट अपॉन अस। तो इस तरीके से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आते हैं। फिर नेशनल आइडेंटिटी इटसेल्फ, मान लीजिए आज से 300 साल पहले आप जाते हैं और पाकिस्तान जो करंट लाहौर है वहाँ पे किसी व्यक्ति से मिलते हैं। लेट्स से यू गेन द मैजिकल पावर ऑफ टाइम ट्रैवल, आइंस्टाइन के अगेंस्ट आप पास्ट में चले जाते हैं। तो आप लाहौर में किसी से पूछते हैं भाई तुम पाकिस्तानी हो क्या, या आप किसी से जाएंगे और इटली में पूछेंगे 2nd सेंचुरी BCE में तुम इटालियन हो क्या? नहीं ना। These are the ideas of national identity that have been created because of political reasons and they were not always there. तो वही चीज़ करिए कि कॉमन सेंस बहुत सारी चीज़ों पे हमारे लाइफ में जो हम देखते हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का, कैटेगरीज का, वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शंस हैं। और एक और पॉइंट जो हम अब तक बार बार डिस्कस करते आ रहे थे कि थियरी इज स्पेकुलेटिव और थियरी इज एनालिटिकल, किसी चीज़ को एनालाइज करती है। So it is an attempt to figure out what is involved in the construction of what we call language or sex or meaning or the subject or anything. तो अब जैसे हम सोचे कि how is language constructed, भाई लैंग्वेज तो कैसे कंस्ट्रक्ट हो सकती है? Only those languages survived that had the political privilege, जिनके ऊपर किसी राजा का हाथ था, सिर्फ वही लैंग्वेजेस बची। से इफ अ किंग हैज डिटरमाइंड दैट speakers of a particular language would be eliminated by him, how would the language survive? The language needs a sort of funding, it needs some basic rules to survive. और इसके construction में जैसे कुछ words को बेहतर माना जाएगा, black would be considered as evil and basically white as good, ये सब किसने तय किया? ये सब भी किसी न किसी तरीके से कंस्ट्रक्ट हुई हैं सोशल प्रोसेस से। या सेक्स की मेल को प्रेफर करेंगे, फीमेल को नहीं करेंगे, या सब्जेक्ट बेसिकली कॉलोनियल सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। खैर, कमिंग टू स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन जेस्चर्स एट अनक्वांटिफाइबल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस। जैसे अगर हम स्पेकुलेट करें तो हर तरीके, जो जैसे एक सोशल प्रोसेस कोई उठा ले, एक कोई कल्चरल इवेंट उठा ले, उसको आप बहुत सारे केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक उसको आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसमें सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रेडिशन की मैं चर्चा करूं, मान लीजिए आप किसी बेसिकली सोशल प्रैक्टिस में क्या आएगा, जैसे प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो ये इसके बारे में आप सोचेंगे कि इनके पीछे क्या रीजंस थे, ये सब आप स्पेकुलेशंस करेंगे। देन इसका एक और मतलब है
केयरफुल रिफ्लेक्शन ऑन हाउ दीज प्रैक्टिसेस वर्क। जैसे कि पावर या डिज़ायर किसी चीज़ में कैसे ऑपरेट करती है। डिज़ायर क्या होती है? इच्छा आपकी। तो इफ़ यू सी एडवर्टीजमेंट्स, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि देर इज़ अ संतूर सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट that is basically for women, and it hints that you will not age if you use this type of soap. Similarly for men, ये कहा जाता है कि if you use particular type of perfume, more girls will be attracted to you. Basically it caters to, it feeds to that desire कि आपके पास एक पार्टनर हो, आप हमेशा इटर्नली यंग दिखें। तो ऐसे ही पावर वर्क करती है, ऐसे ही इन्हीं चीज़ों के बारे में हम स्पेकुलेट करते हैं। एंड देन थियरी इज रिफ्लेक्सिव, इट इज़ द थिंकिंग अबाउट व्हाट वी हैव बीन थिंकिंग सो फार, राइट। एंड दिस इज इंक्वायरी इनटू द कैटेगरीज वी यूज टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स। लाइक जैसे कि अभी हमने बात की कि क्या कैटेगरी, रेशियल कैटेगरीज एंड अदर थिंग्स इन लिटरेचर एंड इन अदर डिस्कर्सिव, मैंने बहुत सारे प्रोसेसेस में, बहुत सारी चीज़ों में, फिल्म में, अन्य चीज़ों में हम इसको यूज करते हैं। तो समिंग ऑफ व्हाट थियरी इज, थियरी वर्क्स टू शो हाउ वन मीनिंग और मीनिंग प्रैक्टिस हैज ऑफन बीन गिवन इंपॉर्टेंस ओवर अनदर। जैसे कि द वाइट हैज बीन प्रेफर्ड ओवर द ब्लैक, राइट। एंड द टास्क ऑफ थियरी इज टू चैलेंज दिस वेरी आइडिया, to challenge this marginalization process, to reveal this marginalization process, and where one meaning is given the favor against the other, ठीक है। और ये भी लोग क्लेम करते हैं कि जो प्रिविलेज्ड मीनिंग है इट इज़ नेचुरल। जैसे हमने पहले कहा कि लोग इसको इस्टेब्लिश करते हैं कि ब्लैक्स आर नेचुरली बैड, राइट। इन्हीं चीज़ों को थियरी चैलेंज करती है। देन द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट इज नेवर फाइनल और नेचुरल। थियरी सेज दैट the meaning of text is never final. If I read the same text, I have my own interpretations. If I give this text to you, ले भाई आप लीजिए, आप भी पढ़ के बताइए मुझे, तो आपका interpretation मेरे से अलग होगा। If a person in the 17th century were reading this Shakespeare's work, तो उसका interpretation अलग है, and our interpretation is different. Like we have now the concept of post-colonialism, and so we can study Tempest in that regard. We can study the characters in that framework. So yeah, also theory, the meaning of text are formed through practices of representation and interpretation. Representation क्या है? अगर authors have been projecting that women characters are necessarily dumb, तो क्या होगा? लोग समझेंगे कि women are dumb, they are not good at mathematics. This is the portrayal that society has always done. And this representation has been challenged by theory or obviously the interpretation as well. तो कुछ मीनिंग्स को नेचुरल बताने की कोशिश की जाती है इवन इफ दे आर नॉट। एंड फाइनली द थियरी इज अ वे ऑफ सीइंग हाउ मीनिंग एमर्जेस इन एनी कल्चरल प्रैक्टिस, वेदर फिल्म, हम मीनिंग देखते हैं कि फिल्म में कैसे मीनिंग निकल के आई। हीरो आया तो हीरो क्या मीन करता है? हीरो मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गुड फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो हम इसको आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, इसको फैशन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। सो थियरी इज द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इटसेल्फ, बट अ रीडिंग ऑफ हाउ वी रीड बिल्डिंग्स। हम बिल्डिंग्स को कैसे रीड करते हैं, लाइक या आर्किटेक्चर को कैसे रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी अर्लियर द street lamps, the lamp posts were so basically decorated. There were, and if you look at fountains, उनमें lions बने होते थे, lions से पानी ऐसे आ रहा है उसके mouth से। These decorations went away with time. अब क्या है? अब there is a simple minimalistic design, like there is a pole like this pen and there is a hanging light over it. तो minimalism की ओर बढ़े हैं, तो there must have been some change. उन चीज़ों को पढ़ने के लिए theory यूज की जाती है। So we are done with theory. I hope I am somewhere around 30 to 35 minutes in this video. If not, it's always better to have some time. अब the second topic है वो है हमारा structuralism. It is one of those many theories that we have to study. So हम उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जा सकते, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनको समझेंगे। तो what is structuralism? Structuralism is an intellectual movement which began in the 1950s in France, England और other places में अमेरिका में 1970s के अराउंड आया।
So it is first seen in the works of Claude Lévi-Strauss and the literary critics. Strauss is an anthropologist. जैसे हमने पहले देखा थियरी में क्या था, थियरी में अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं, जैसे इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और लिटरेरी क्रिटिक रोलैंड बार्थ्स हैं. इनके टाइमलाइंस आप देख सकते हैं, काम आएंगे एग्जाम में. तो व्हाट डज स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव और द बेसिक बिलीफ्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? तो इट बिलीव्स दैट वर्ल्ड इज ऑर्गेनाइज्ड एज स्ट्रक्चर्स. तो एक अमेरिका में एक प्रोफेसर था. सो वन स्टूडेंट आस्क्ड हिम something about structures, and he said that the complex of reality is made up of simple structures. For example, if you see, this is a home. Thank God I did not study civil engineering, नहीं तो लोग मुझे भगा देते. तो say this is a home, it has now become worse. तो ये एक home है. It is made up of simple bricks. And these bricks are the structure, the component parts of this structure. Similarly, if you remember your class 9th practical of onion peeling, this onion's outer layer is being used in that practical. उसमें आप क्या करते हैं? You place that outer layer of the onion under microscopic vision, and what you see that there are cellular structures that are connected with each other in a specific fashion, and these structures make up the outer layer or even other layers of the onion. Similarly, the world is organized as structures. Basically, the difference is we cannot see these structures. These are there, but most of the times we do not see them. They are abstract entities. So structures are made up of units, as we discussed now. And these units follow particular rules in the way they are organized. अभी हम next slide में आएंगे और हम ये समझेंगे कि कैसे. For example, a poem, right? But अब हम अगले slide में जाएं उससे पहले last ये point देख लेते हैं कि in other words it believes that things cannot be understood in isolation. Complete contrast to what people in liberal humanist people were saying. They were saying that you can study text in isolation without any context, without rooting them in any sort of historical or political precondition. तो बेसिकली इनका है कि आइसोलेशन में पढ़ सकते हैं और आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं, जो थियरी कह रही है, और दे हैव टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स दे आर पार्ट ऑफ. इसीलिए इसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते भी हैं. सो कमिंग टू द एग्जाम्पल, और यहाँ पे रूल्स की बात की हमने और पोम की बात की. You see this poem by John Keats, Ode on a Grecian urn. बहुत फेमस पोम है. अर्न होता है कलश, लाइक ग्रीस का कोई 2000 साल पुराना कलश है. I've taken a few lines from this poem. I hope you can see it. If you cannot, you can open this poem किसी वेबसाइट पे, ठीक है. तो these are some of the notes that I have added. What you can see in this poem, that is, it is being constituted by sounds. Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. ये बहुत सारे slow, foster, something ऐसे words, sounds आ रहे हैं, right? Then there are phrases, ऐसे Sylvian historian जैसे phrases. Pauses, quietness के बाद pause. अब हमको लगता है कि कुछ और बात आएगी तो pause लिया गया है. There are punctuations obviously. What are these? These are components of this poem. Then this poem generates an image of a कलश. इस बार तो मैं बढ़िया कलश बनाऊंगा, ठीक है. So this कलश, let's say the urn, and इस इमेज को कैसे हम समझ रहे हैं? राइम स्कीम से. क्वाइटनेस, एक्सप्रेस, टाइम, राइम, और इसमें साउंड, स्टॉप्स, पंक्चुएशन से. The meaning of the poem is not a result of only the words, but meaning is produced by the combination of all these elements. ठीक है. So when these units work together, then only we produce the meaning. Then words have specific locations. जैसे अगर कहें कि thou still Sylvian historian bride express और rhyme, अगर हम इस ऑर्डर में इनको लिख दें वर्ड्स को, क्या कोई सेंस बनाएगा? नहीं. चूंकि ये यहाँ है, इसके साथ है, this is the only reason that it is making sense. And this whole thing is called the structure of the poem. प्राइमरी आइडिया हम समझ चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द पोम क्या है. अब हम इसको पढ़ क्यों रहे थे? दिस पोम इन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर इंक्लूड्स अदर सिमिलर structures like, if you see poem, then there are structures like novel, drama, essay, travelogue, so many. तो
एंड लिटरेचर इन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर कल्चर, जिसमें सिनेमा है, जर्नलिस्टिक राइटिंग्स और रिपोर्टाज हैं, मिथ्स हैं, जैसे सी गॉडेस का मिथ, रिवर गॉडेस का मिथ, इस तरीके के, एंड पॉलिटिकल स्पीचेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग हाउ अ होल बंच ऑफ पीपल थिंक. करंट नेशनलिस्टिक मूवमेंट और द ओल्डर टाइम्स जो हमने देखा है, नेशनलिस्टिक मूवमेंट ओल्डर टाइम्स में, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ रीजन्स रहे हैं. ठीक है, तो द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर इनकॉर्पोरेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर, देन इट इनकॉर्पोरेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पोम में ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं. तो ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, राइट. अभी हम बात करते हैं लैंग्वेज की. एक कैरेक्टर आता था सब टीवी पे, बहुत पुराना एक शो है, इस शो को बोलते हैं FIR, सब टीवी पे आता था. इसमें एक कैरेक्टर है गुलगुले. ठीक है, फनी नेम है बट बहुत फनी कैरेक्टर भी है. तो अगर हम बोलें, हमने इसका एग्जांपल क्यों लिया, टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज वर्क्स, राइट. सो वी से दैट गुलगुले इज ईटिंग समोसा. आई एम यूजिंग समोसा, समोसा, मैं अंग्रेज नहीं हूँ, समोसा को समोसा ही बोलेंगे. आई होप यू कैन सी इट. तो गुलगुले, पहला चीज़ तो हम थियरी वाले लोग हैं, तो हम जो ट्रेडिशनल नाम रोहन रमेश लिखा जाता है, मैं वो नहीं लिखूंगा, गुलगुले लिखूंगा. तो गुलगुले इज ईटिंग समोसा. दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. हु इज गुलगुले? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज इट? ऑब्जेक्ट. सो लैंग्वेजेस फॉलो देयर ओन स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे हम कहीं बात कर रहे थे ना शायद, कि जहाँ कहीं भी हो, कि मतलब लैंग्वेजेस में भी कुछ कॉमन यूनिट्स होती हैं. अब देयर इज अ रूल इन विच थ्रू विच दीज वर्ड्स हैव बीन कंबाइंड. कैसे? गुलगुले और इज, ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर. सेम जर्मन में भी बहुत सारे केसेस में होता है. हिंदी में बात करें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो जाता है. ये रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स बनाती हैं. अगर हम इन रूल्स को समझ जाएं तो हम ढेर सारे स्ट्रक्चर्स, गुलगुले की जगह रमेश ही लिख देंगे, ईटिंग की जगह कुछ और लिख देंगे, समोसा की जगह कुछ और लिख देंगे. इफ़ वी हैव द प्रिंसिपल पॉइंट है कि द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, इफ यू नो द रूल्स, वी कैन प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेंटेंसेस. तो हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? Because structuralism is interested in the relationship between the elements of a structure. Structure self-contained होता है, जैसे पोम है तो अपने आप में एक पोम है, और ये जो रिलेशनशिप है उन्हीं से मीनिंग आती है. पोम में देखा आपने, अगर ये अनरेविश्ड और ब्राइड एक साथ नहीं आए तो मीनिंग नहीं आएगी, राइट. और उसके अलावा इट फोकसेस ऑन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट बाय लुकिंग एट एलिमेंट्स. ये हो गया. Since it believes that meaning is the effect of the coming together of elements, बहुत सारी चीज़ों को मिलने से मीनिंग आती है. If we understand the rules governing the relationship between elements, we can decipher the processes of meaning production. If we understand how a serial Bau, Sasra Bau, Rani wala serial is made, what are the core principles of these serials, structures of these serials, और say films. मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे भोजपुरी फिल्म, साउथ इंडियन फिल्म्स. So some of these films have structures like this, जिसमें हम जैसे बात किया ना कि अगर हम सिर्फ ये समझ जाएं कि व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द कन्वेंशंस बिफोर दीज प्रोसेसेस, तो या इन बिटवीन दीज रिलेशनशिप्स, इन इस वर्ड और इस वर्ड्स के पीछे क्या रूल है, अगर हम ये समझ जाएं तो हम समझ जाएंगे कि मीनिंग कैसे आ रही है. मीनिंग इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर, इन चारों के कॉम्बिनेशन पे आ रही है कि गुलगुले समोसा खा रहा है. तो सिमिलरली हम अगर फिल्म की बात करें तो इन साउथ इंडियन फिल्म्स, और इन बेसिकली मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, देयर आर सो मेनी गुड फिल्म्स, बट द पॉइंट इज देयर इज वन हीरो, देयर इज वन हीरोइन, देन देयर इज हीरोज फादर, मदर, sister that has been kidnapped or killed, murdered, so on by the villain. Then there is the villain, then hero and villain fight, and at the end hero wins, indicating the victory of the good over the evil. This is the formula, this is the structure of that film. Like in इसमें आप देखेंगे narratology में, तो उसमें भी इन चीज़ों की बात हुई है, although we are not discussing that today. So structuralism is the study of structures, जिसमें फिल्म, नॉवल, ड्रामा, पोम, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स सब कुछ आता है, with specific attention to rules, grammar of the elements.
अब हम ये सब बात कर चुके हैं। इट्स रिलेटेड फील्ड इज सेमियोटिक्स, हम आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा और डिटेल टॉपिक हो जाएगा। लेकिन सेमियोटिक्स टेक्निकली द स्टडी ऑफ साइंस। साइन क्या होता है, जैसे रेड साइन देखा आपने, रेड सिग्नल देखा तो आप रुक गए, ठीक है, तो वैसा ही इसको साइन बोलते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म एमर्ज इन द 1950s। कोई भी फील्ड है वो पहले आती है, ऑल्दो इट्स ओरिजिन्स ले फर्दर बैक इन हिस्ट्री। लाइक कहाँ, अर्ली लिंग्विस्टिक जो है लिंग्विस्ट हैं 20th सेंचुरी के, फर्डिनांड डे सॉस्योर। सॉस्योर से ही हम इस फील्ड के ओरिजिनल आइडियाज़ को ट्रेस कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि फर्डिनांड डे सॉस्योर खुद को स्ट्रक्चरलिस्ट बुलाते थे, वो लिंग्विस्ट ही थे। उनकी जिस बुक का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैं पहले वो शायद वो आगे होगी और अभी आते हैं, ये बुक है और अभी हम पीछे चलते हैं फिर से। सो ये फर्डिनांड डे सॉस्योर हैं, बड़े बड़े मूँछों वाले, एंड दीज आर सम ऑफ हिज कंट्रीब्यूशंस. We will study some of these topics in today's video. And so coming to Saussurian linguistics. So Saussure proposed a rethinking of the nature of language. Before Saussure, diachronic study was popular. What is diachronic study? जैसे अभी हमने शुरू में देखा कि the word theory has emerged from the word theoria, और भी मैंने बहुत सारे words लिखे थे, theoran, horan, ऐसे बहुत सारे words लिखे थे. तो ये एटिमोलॉजी है, ट्रेसिंग हाउ द वर्ड्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हेन यू डू इट दिस इज कॉल्ड डायक्रॉनिक स्टडी. तो Saussure says that this is not sufficient. What you need is a synchronic study, basically studying words at a particular time, how they are being affected by social relationships, how they are affected by the general context of a particular age. तो ये क्या है कि हाउ वर्ड्स मीन विद इन अ पीरियड एंड एज अ पार्ट ऑफ द जनरल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. जैसे इसके दो एग्जांपल्स लेंगे. और पहली बात कि सिंक्रोनिक स्टडी में वी ऑल्सो फोकस ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड सर्टेन वर्ड्स करेंटली टुडे. जैसे हम लेंगे एडवोकेट और ग्लैमरस. यू से दैट ओ दैट पर्सन इज़ वेरी ग्लैमरस. आज के ज़माने में होगा बहुत मतलब अच्छा दिखने वाला, समथिंग लाइक दैट. बट बैक इन आवर हिस्ट्री इसका मतलब था, मतलब इंग्लिश के हिस्ट्री में, ये तो चुड़ैल है. तो सिमिलरली एडवोकेट is a matter of pride today. If someone becomes an advocate, say advocate on record in the Supreme Court of India, उनको बहुत इज्जत मिलती. But back then advocate was had a negative meaning. क्या मतलब very similar to what we understand as dalal. तो we are concerned with its current uses. क्योंकि अगर बहुत पहले जाएंगे तो ये वर्ड आज के टाइम यूज करने लायक नहीं रहेगा. तो दैट्स वाई सिंक्रोनिक स्टडी इज इंपॉर्टेंट. एंड देन दिस इज another idea कि Saussure divides language into two categories. One, basically two main components. The first one is lang and the second one is parole. So lang is the underlying set of rules, underlying set of conventions that govern a language by which we combine words into sentences. जैसे हमने देखा कि गुलगुले के साथ helping verb आएगा, then वो आएगा, verb आएगा, वो आएगा. तो हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के रूल्स होते हैं जो लैंग है. लैंग इज बेसिकली द होल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज विच हैज़ रूल्स, विच हैज़ वर्ड्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. एंड दीज रूल्स आर बेयरली अल्टर्ड. उनके क्या है कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो दैट वट ग्रामर इज अनचेंजिंग. जो आपको पढ़ाते होंगे बचपन में ग्रामर, दे मस्ट हैव टोल्ड यू द ग्रामर बाय एंड लार्ज अनचेंजिंग. इट रिमेन्स फिक्स्ड, इट इज़ नॉट अल्टर्ड. यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक है, आई थिंक इट्स ऑल यूजर्स, राइट. तो इसको सारे यूजर्स एक लैंग्वेज के फॉलो करते हैं. देन परोल इज एनी स्पेसिफिक अटरेंस. जैसे माई नेम, दिस इज एन अटरेंस इन द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ दिस लैंग्वेज. उसमें क्या हमने दो वर्ड्स चूज किए. देन इट कुड बी एनी टेक्स्ट एज वेल. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि वेटिंग फॉर गोडो इज अ लिटरेरी परोल, तो लैंग क्या है, पूरा लिटरेचर लैंग है. तो उसमें वेटिंग फॉर गोडो, मिडिल मार्च, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऐसे इंडिविजुअल वर्क्स, इंडिविजुअल अटरेंसेज, वर्ड्स, उनको क्या बोलते हैं, जो जैसे हम एवरीडे स्पीच में भी यूज करते हैं, वो है परोल. यहाँ परोल लिटरेचर का बात, परोल ऑफ लिटरेचर है, वहाँ परोल ऑफ लैंग्वेज है. बेसिकली लैंग पूरा सिस्टम, परोल उसमें एक अटरेंस. अगर आप वेन डायग्राम से देखें तो ये है लैंग और ये है परोल. ठीक है.
आई होप द आइडिया इज क्लियर एंड दिस इज द वर्क दैट आई वाज रेफरिंग टू। इस ये देखिए उन्होंने खुद नहीं लिखा है, इनके स्टूडेंट्स ने कंपाइल किया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज इसमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फॉर्मेशन नहीं है। कमिंग टू सॉसियोस रिलेशनल थियरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो हम अब इसको धीरे धीरे समझ चुके हैं कि वर्ड्स एग्जिस्ट इन रिलेशन टू ईच अदर। पहले ही हमने देखा कि कुछ वर्ड्स एक दूसरे के आसपास रिलेट करके आ रहे हैं। नो वर्ड कैन बी डिफाइंड इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर वर्ड्स। वर्ड्स डू नॉट हैव देयर मीनिंग इन देमसेल्व्स, दे आर अंडरस्टूड एज कंट्रास्ट, दे आर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस। सो द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड was dependent upon the meaning of other words. For example, अगर आप rat word यूज कर रहे हैं, cat word यूज कर रहे हैं, mat यूज कर रहे हैं, so how do you know that rat and cat are different things? One, that there is a difference in pronunciation, r and k, rat and cat or mat. Then you know that these two things are written differently, they mean समथिंग एल्स। अगर मान लीजिए हम बोलें कि नहीं, रैट का भी मतलब चूहा होता है, मैट का मतलब भी चूहा होता है, कैट का मतलब भी चूहा होता है, सो वुड यू यूज ऑल थ्री वर्ड्स? ऑब्वियसली नॉट। सिमिलरली दिस इज अ बेटर एग्जाम्पल इन माई ओपिनियन, मैंने ये पीटर बैरी से लिया हुआ है कि हट इज डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस। अगर मैं बात करूँ, ये है हट, ठीक है, छोटी हट, अभी कोई सिविल इंजीनियर बस इस वीडियो को ना देख ले, तो ये हट है, ये है बड़ा सा पैलेस एंड दिस इज अ नॉर्मल हाउस, राइट? सो हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट? जब कोई कहता है कि हट है, मैंसन नहीं है, पैलेस नहीं है, तो वी अंडरस्टैंड दैट हट इज अ स्मॉलर स्ट्रक्चर, पैलेस इज अ बिगर स्ट्रक्चर एंड दे आर अल्टरनेटिवली यूज्ड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉलर स्ट्रक्चर वी यूज द वर्ड हट, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिग स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड पैलेस। और डे, यू अंडरस्टैंड समथिंग इज अ डे ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नाइट। अगर डे का कंट्रास्ट ना हो नाइट के में, तो आप समझेंगे कैसे कि कोई अंतर है? सिमिलरली वी अंडरस्टैंड अ वर्ड बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड। सो द प्रिंसिपल हियर इज ऑफ डिफरेंस एंड ऑपोजिशन। एक वर्ड दूसरे से अलग है, ऑल्दो ये और ये उसके ऑपोजिट मीनिंग में है। ऑपोजिट का मतलब ये नहीं कि एंटोनिम है, ऑपोजिट का मतलब ये कि वो उससे सिमिलर नहीं है, ठीक है? ऑपोजिशन है, वो अगर ये आएगा तो वो हट जाएगा, रिप्लेसमेंट की बात है। कैट आ रही है तो मैट हट जा रहा है, रैट आ रहा है तो कैट हट जा रहा है, ऐसा ही है। तो वी अंडरस्टैंड अ वर्ड बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स, ऐसा ही है। और हम इन डिफरेंसेस को यूज करके लैंग्वेज को समझते हैं, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। कमिंग टू एट्रीब्यूट, आर्बिट्ररीनेस, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, बड़ा बड़ा वर्ड आ गया फिर से, तो हम लोग थोड़ा कम टाइम वेस्ट करेंगे। आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, बट पेशेंस थोड़ा फिर से बनाए रखिए। सॉसियर सेज दैट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आर नॉट नेचुरल, पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अभी क्या समझेंगे कि वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, बट दे आर क्रिएटेड थ्रू रिपीटेड यूज एंड कन्वेंशन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडिया, आई हैव ऑल्सो समवेयर हाईलाइटेड इट, आई थिंक, या हियर इट इज, यूज। सो द वर्ड कैट डज नॉट नेचुरली रेफर टू अ फोर लेग्ड एनिमल। जैसे अगर हम इस कैट की बात करें, वैसे तो मैंने सिलेबस के वीडियो में भी इस फालतू डायग्राम को नहीं बना है, बट अगर हम इस कैट को बात करें, ये एक एक्चुअल कैट है और ये है वर्ड कैट। हाउ इज दिस वर्ड रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनिज्म? कैट तो कक्का नहीं बोलती है, कैट तो म्याऊ म्याऊ करती है, तो इट शुड हैव बीन मैट, राइट? सो देयर इज नो internal or there is no basically natural connection of the word with the concept that it is referring to. Like cat के एक specific behavioral pattern है, हम इस word से कैसे जान सकते हैं? ये हमें लोगों ने बताया है कि cat मने बिल्ली। Also meaning is attributed to words, मतलब हम इसमें meaning दे रहे हैं कि देखो cat का मतलब ये, potato का मतलब आलू, similarly, and through its use by a community of language users। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी में कैट को बोलते हैं बिलार, तो लेट्स से यू गो टू अमेरिका एंड से कि भाई साहब मेरी बिलार नहीं मिल रही है, सो हाउ वुड दे अंडरस्टैंड दैट यू आर रेफरिंग टू द फोर लेग्ड कैनाइन दैट वॉक्स ऐसा फुर करके? तो ये अट्रीब्यूशन हम देते हैं जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है। हिंदी वाले लोग, भोजपुरी वाले लोग ही समझेंगे कि बिल्ली बिलार क्या है, वो कैट नहीं समझेंगे। यानी डेफिनेटली जैसे आई थिंक जर्मन में कैट को काट से बोलते हैं, तो क्या इस वर्ड और इस कैरेक्टर से कोई संबंध है? नहीं, हमने बस किसी चीज़ का नाम कुछ भी रख दिया, जैसा जैसा रख दिया और वही चलता आ रहा है, ठीक है? अभी मैं कल को राजा हो जाऊँ, बोलूँ कि नहीं नहीं
अब कल से हम लोग कैट को बोलेंगे चिरगोजा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं तो राजा हूँ। सिमिलरली तो अब पॉइंट समझ चुके होंगे कि ये मीनिंग्स अट्रीब्यूट की जाती हैं जो डिसाइड हो गई कन्वेंशन में। वी डिक्लेयर दैट देयर आर दिस सीजन्स, लाइक विंटर है, समर है, पर ये हम लोगों ने नेम्स दिए हैं, वो कह के थोड़ी आते हैं। दैट देयर इज ए कैटनेस इन कैट, जैसे कैट वर्ड में उसका एक्चुअल कैट का रिप्रेजेंटेशन छुपा हुआ है जिसको हम कैटनेस बोल रहे हैं। तो भाई हमको थोड़ी पता है कि हाउ डज द कैट थिंक अबाउट इटसेल्फ। हो सकता है कैट अपने आप को टाइगर मानती हो सकता है कैट खुद को राजा समझती हो सकता है खुद को देवता समझती हो, ये तो हम नहीं जानते, हम तो बस उसको बोल देते हैं कैट, राइट। सो द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज प्योरली आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मीन्स रैंडम, कोई स्पेसिफिक नेचुरल रिलेशन नहीं है। ऑल्दो सम पीपल वुड साइड द केस ऑफ onomatopoeic वर्ड्स वेयर दे से दैट HISS is pronounced as hiss, so there is a relation between the written form and the actual sound. However, there are very less number of onomatopoeic words, his, his, ऐसे करके buzz संख्या कम है। Moreover, they too have their own histories. These words were not originally written in this form. They were constructed. ऐसा सॉस्योर खुद अपने वर्क में लिखते हैं। और the word, ये कैट या अन्य वर्ड्स जो हैं इनको हम बोलते हैं सिग्निफायर। एक साइन होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज सिग्निफायर एंड द अदर इज सिग्निफाइड। सो दिस वर्ड that we are using is signifier and the concept that we are referring to is the signified। यहाँ आप देखिए signifier का मतलब साउंड भी हो सकता है, ट्री, क्या ट्री में ट्र ट्र की आवाज़ आती है, नहीं वो तो मेढक में आती है, बट वी एसोसिएट द वर्ड ट्री विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्री, द एक्चुअल ट्री। तो ये हुआ सिग्निफायर और ये हुआ सिग्निफाइड। जो ये हमारी इमेज आती है हमारे दिमाग में जब हम ये वर्ड बोलते हैं वो है सिग्निफाइड और ये है सिग्निफायर, ठीक है। तो और साइन क्या है, जैसे हमने बात की कि साइन है रेड सिग्नल, सिग्नल जिससे आप क्या इंटरप्रेट करते हैं, साइन से आप क्या इंटरप्रेट करते हैं कि रेड सिग्नल है यानी खतरा है, या तो डेंजर है या फिर हमको स्टॉप करना है जो हमको रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अब इसमें रेड सिग्नल में सिग्निफायर सिग्निफाइड क्या है, रेड सिग्नल जो वर्ड है रेड वो है आपका सिग्निफायर, और जो हमारे दिमाग में आता है कि देयर इज अ रेड सिग्नल जो इस तरीके के लैम्प पोस्ट पे लगा होगा वो है वो क्या है, वो है सिग्निफाइड। तो लेटर सॉसियर्स आइडियाज अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स वर अडॉप्टेड बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस टू एनालाइज मिथ्स, किस तरीके से मिथ्स का कंस्ट्रक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यू सी द मिथ्स ऑफ सी गॉडेसेस, यू सी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, रिचुअल्स, और शायद नीचे छूट गया किनशिप्स की बात की जा रही है, सोशल रिलेशंस की बात की जा रही है। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके स्ट्रॉस ने पढ़ा था। सो वी हैव रेफर्ड टू दिस एंड दिस इज अ पिक्टोरियल ग्राफ ऑफ से सेमियोटिक्स। इसमें आप बेसिक समझ सकते हैं, ये चार्ल्स पेयर्स ने इसकी शुरुआत की थी, हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। दिस इमेज इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन सर्च, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन सर्च इट, यू विल फाइंड इट। द लास्ट ऑफ आवर डिस्कशन, basically last of our critics is Roland Barthes and some of his quotes. So in his S/Z और S/G, ये एक वर्क है जो 1970 में आया था। He took up this one of the stories by Honoré de Balzac, I think. Some people pronounce as de Balzac, even if we usually pronounce it as D. Honoré de Balzac, and his story is titled this. So Barthes divided this story into 561 lexes or units. Units क्या है, बेसिकली जैसे अभी हम देख रहे थे वहाँ वर्ड्स थे पोम के अंदर, उसी तरह यहाँ पे भी लेक्सीज हैं। एंड देन ही क्लासीफाइज यूजिंग 5 कोड्स। ये कोड्स क्या है, हर फिल्म में जो भी आप फिल्म देखने जाते हैं, जो भी आप करने जाते हैं, उनमें ये कोड्स होते हैं। जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो हर फिल्म में क्या होता है, कोई एक्शन बताया जाता है, कोई आ रहा है, फिर कोई क्वेश्चन होता है, कुछ घटनाएं होती हैं जो फिल्म को बनाती हैं, हर तरीके की स्टोरी को बनाती हैं। आई विल टेक जस्ट अ मिनट टू रिफ्रेश माई सेल्फ। आ गया 5 कोड्स। इन्होंने क्या किया, ये कोड्स क्या है, दीज आर बेसिक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल नैरेटिव्स।
So the first code is pro-aeretic code. It indicates actions. So the ship has sailed, people have marched, the hero is coming. जैसे कि आपने उस फिल्म में देखा होगा, क्या बोलते हैं, कभी खुशी कभी गम, हेलीकॉप्टर से हीरो आ रहा है. तो ये क्या है, ये एक्शंस के बारे में जो बता रहा है वो प्रो-एरेटिक कोड है. देन कम्स द हर्मेनेटिक कोड विच प्रेजेंट्स अस विद द क्वेश्चंस और नैरेटिव सस्पेंसेस. एनिग्माज उन्हीं चीज़ों को रेफर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिमेंबर दैट शो, बहुत छोटे पर जो आता था, फिर कोई है, तो उसमें एक सीन डेवलप होता है जिसमें लेट्स से कोई एक सुनसान इलाके में घर है एंड देन समवन नॉक्स एट द डोर, टक 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 टक. सो द ऑडियंस थिंक्स हु इज़ एट द डोर, वाई इज़ ही और शी देयर, व्हाट इज़ हिज इंटेंशन, वेयर इज़ दिस लोकेलिटी, क्या कोई है क्या हेल्प करने को. तो ये हम क्वेश्चंस हैं जो किसी जो हम समझते हैं हर्मेनेटिक कोड से, ये ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, सस्पेंस जिसको बोलते हैं. देन कम्स द कल्चरल कोड. कल्चरल कोड क्या है कि कभी कभी टेक्स्ट में या फिर फिल्म में या अन्य चीज़ों में देयर आर रेफरेंसेज दैट आर बियॉन्ड द टेक्स्ट, पर वो क्या है कि दीज रेफरेंसेज आर कंसिडर्ड एज कॉमन नॉलेज. ठीक है. सो ये क्या करता है, ये एक प्री एग्जिस्टिंग इमेज इवोक करता है रीडर के माइंड में एक स्टीरियोटाइप ऑफ, समझ लीजिए, जिसके लिए आपको किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये आपके कल्चर में गिवन है और आप ये ऑलरेडी जानते हैं. जैसे इस केस में क्या है कि हम वी हैव टेकन अप एग्जाम्पल ऑफ वेटिंग फॉर Mahatma, novel by R.K. Narayan, published in 1955. So if you know that the context of the novel is 1955, even if the novel does not mention who is this Mahatma, you already know because your culture has told you that Mahatma is Mahatma Gandhi, and because you know its historical context as well, so it is always easy to decipher. So you don't need a glossary, किताब, डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है to understand these things. Then comes सेमिक कोड. सेमिक कोड को कनोटेटिव कोड भी कहते हैं, कॉनोटेशन का भी काम करता है. कॉनोटेशन होता है जब किसी चीज़ को ऐसा रेफर करते हैं. इट इज़ अ सेट ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्टिव सेल्फ एविडेंट स्टीरियोटाइप्स. तो ये कल्चरल कोड से कुछ मामलों में बेसिकली थोड़ा बहुत सिमिलर होता है. लेकिन जैसे मान लीजिए अ मैन इज़ वेयरिंग अ गांधीयन कैप, तो आप क्या समझेंगे, क्या उससे मतलब निकालेंगे, सिंपली कि एक कोई पॉलिटिशियन है. तो इसमें और इसमें अंतर क्या है. इस कल्चरल कोड और सेमिक कोड में बेसिक अंतर यह है कि ये आपको पहले से गिवन होता है, आप जानते हैं, और इस केस में आप उसको स्टैब्लिश करते हैं. यहाँ आप जानते हैं कि महात्मा कौन है, यहाँ आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये दिखाया जा रहा है, तो व्हाट डज इट मीन इन द सेमिक कोड, व्हाट डज इट मीन इन आवर कल्चर, ये आप गेस करते हैं. इनका कॉनोटेशन क्या है, बताना क्या चाहते हैं, ये आप गेस कर रहे होते हैं. एंड कम्स द सिम्बॉलिक कोड. सिम्बॉलिक कोड और सेमिक कोड में भी कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ डिफरेंसेस हैं. सो वन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ स्केल. तो द स्केल ऑफ सिम्बॉलिक कोड इज लार्ज, इट एक्सटेंड बियॉन्ड द इमीडिएट आइकॉन और स्टीरियोटाइप. फॉर एग्जांपल ये कैमरा लिया हुआ, मैं कैमरामैन हूँ, तो लेट्स से हमने क्या किया कि एक शॉट दिखाया मून का, और ये कोई हॉरर सीरियल है, ठीक है, हॉरर सीरियल, हमने एक मून का शॉट दिखाया, और इमेजिन कीजिए मून से हम लोग धीरे धीरे नीचे नीचे आ रहे हैं घरों की ओर. ठीक, ये हमने एक शॉट कंप्लीट किया. मून दिखाने का सेमिक मतलब क्या होता है, व्हाट आर वी गोइंग टू इन्फर फ्रॉम इट, वी वुड इन्फर दैट it is dark outside, that is why the moon is being shown, it is not the day. So this is immediate understanding of what is there in the film or what is there in the scene. But what is the symbolic understanding, what is the extended understanding, that there is an impending danger. भूत और भूतनी आने वाले हैं क्योंकि अंधेरा है. वो जो चांदनी रात एंड एसोसिएशंस ऑफ भूत एंड चुड़ैल, तो उससे आप समझेंगे. तो ये क्या एक सिमेंटिक एक्सपेंशन है. एक जगह सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट बात हो रही थी कि अच्छा मतलब मून है, इसका मतलब अंधेरा होगा, उतना लाइट नहीं होगी. लेकिन जो एक्सटेंडेड मीनिंग है वो ये है कि खतरा है. अंधेरे का मतलब उस चीज़ को दिखाने का मतलब है कि एक खतरा आने वाला है. सो दीज आर अदर वर्क्स ऑफ बार्स. आई थिंक वी आर नॉट एबल टू सी इट. वन इज द प्लेजर्स ऑफ टेक्स्ट, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्क है माइथोलॉजीज 1957.
I think I've jumped to conclusion. What do structuralist critics do? Basically, they analyze narratives. They relate the text to larger structures. ये सब हम already पढ़ चुके हैं, right? और ये देखते हैं what are the recurrent motives, कौन सी चीज़ें बार बार आ रही हैं. जैसे मोटिव की बात करें कि कुछ कहानियों में, बहुत सारी कहानियों में you see that a prince is going to the jungle. ये हम सिलेबस वीडियो में भी बता चुके हैं कि the prince is going to the jungle. He discovers a poor lady. He helps her, and the poor lady transforms into a goddess or a pari and rewards this prince. तो ये मोटिव्स बहुत सारे केसेस में पाए जाते हैं और इन्हीं चीज़ों को स्ट्रक्चरिस्ट लोग पढ़ते हैं. Then they interpret literature in terms of underlying parallels with structures of language. जैसे कि वो अन्य चीज़ों को भी इसके साथ साथ लेके पढ़ते हैं. जैसे मिथीम है, वो मॉर्फीम के इक्विवेलेंट में आप पढ़ सकते हैं. जैसे मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड एंड मिथीम इज द स्मॉलेस्ट मेकिंग पार्ट ऑफ अ मिथ. जैसे मान लीजिए सी गॉडेस का मिथ हम बार बार बोल रहे हैं, तो सी गॉडेस का मिथ क्या है? इट मस्ट हैव डेवलप्ड आउट ऑफ some tradition, basically because people were going into the seas, they were dying, there must have been some fear, so resulting में क्या होगा? लोग सोच रहे होंगे कि there is some goddess, if you please her, she will make things easier for us. तो वो उसके मेकिंग यूनिट्स को कोशिश करते हैं समझने की स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स. उनमें से एक एग्जाम्पल है. देन दे अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक पैटर्निंग एंड स्ट्रक्चरिंग टू होल फील्ड ऑफ कल्चर्स. उनमें क्या है कि उनको साइंस समझते हैं हम, सिस्टम ऑफ साइंस, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. फैशन है, मतलब परफ्यूम्स हैं, मिथ्स ऑफ एनी कल्चर, कुछ भी जो समाज में है, फिल्म्स हैं, वो सब इसका पार्ट है जो स्ट्रक्चरलिस्ट पढ़ना चाहेगा. दीज आर सम अदर कंट्रीब्यूटर्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. इनमें से आप इस वर्क को जानें, जोनाथन कलर की स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है, एग्जाम में पूछा जाता है. एंड दीज आर सम अदर वर्क्स. These are related concepts that are studied along with structuralism. They are pre-structuralist thoughts. कुछ बुक्स में इसको स्ट्रक्चरलिज्म के कैटेगरी में ही रखा गया, जैसे पी.के. नायर की लिटरेरी एंड कल्चरल थियोरी में. तो when we come to our actual course, we will also discuss these ideas, जैसे Bakhtin's concepts of dialogism, heteroglossia, chronotope, etc., and all these other things. So coming to our conclusion, that structuralism is an extremely useful and well organized approach to literary and cultural texts. So it does not actually interpret the sequence of events, but it tries to find out tries to determine the nature of this system underlying the event. ये सिर्फ ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि कहानी कैसे बढ़ी, पर उसमें क्या क्या रीजन्स थे उसके बढ़ने को. तो ये आइडिया स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स एक 1994 में ही एक वर्जन आया था जोनाथन कलर का, उसमें से ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया है, और ये पूरा स्टेटमेंट पी.के. नायर का. So I hope you like this video. This has become a bit longer than I expected it to be, but if it made sense to you, drop a comment. And अगर आपको किसी जगह मेरी स्पीच समझने में दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ ऑल्सो मेंशन दैट. मोर ओवर, आप अगर इस कोर्स को पसंद करते हैं, आपके अदर फ्रेंड्स अदर कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो यू कैन text us, and as I have already told you that you can avail extra 10% off on our app. तो अगर सब कुछ अच्छा है तो आई होप हम इस जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. सर